Good morning, students. In BSc second year, third semester, you have two papers of physics. Paper 1 is of computer programming and thermodynamics, and paper 2 is of optics. Today, we will start with paper 2, optics. In optics, you have four units. Unit 1 and 2 deals with interference, and unit 3rd and 4th deals with diffraction. So today, we will start with unit 1st, that is of interference. In this unit, you will study the interference pattern produced by waves emanating from two-point coherent sources. Here, point two-point coherent sources. Here, but now we will see what is coherent sources. Coherent sources are the sources which produce coherent waves. Next, we will define what is coherent wave. If two or more waves maintain a constant phase difference over a long distance in time, then they are said to be coherent waves. That is, that if two waves have a constant phase difference, that is d phi by dt is equal to 0 if phi is the phase difference between the two waves, then they are said to be coherent wave. This is the most important condition if we want that the two waves produced an interference pattern on a screen. The two waves must be a coherent wave, that is, they must have a constant phase difference over a long distance and time. Now, if we see these two waves, now first of all, these are two waves are incoherent waves. Why they are incoherent? Because now this particle and this, they don't have the constant phase difference. The phase difference is continuously changing in these two waves. Therefore, these two waves are incoherent waves. If we will see these two waves, sorry, then these waves are coherent waves because in this the phase difference between the two waves, that is 1 and 2 and 3 and 4, is always constant. Now if we see now this, they have the phase difference of 0. All these two waves always have the phase difference of 0 or 2 pi. Now in this, if we see here, the phase difference is of pi. So here we have the phase difference between 1 and 2 is of 0 or 2 pi. In this we have phase difference between 3 and 4 is of pi. If we see that, then these points also have the phase difference of pi. Therefore phase difference is always remains constant. phase difference change नहीं हो रहा है. phase difference हमेशा टाइम के साथ क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट. अगर 0 है तो हमेशा क्या रहना चाहिए, 0. 2 पाई है तो 2 पाई, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है तो 3 पाई बाय 2, अगर पाई है तो पाई, तभी वो वेव्स क्या होंगी, कोहेरेंट वेव्स होगी. अगर उनका फेज डिफरेंस जो है बार बार चेंज हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 2 पाई हो रहा है, कभी पाई हो रहा है, कभी पाई बाय 2 हो रहा है, कभी 3 पाई बाय 2 हो रहा है, तो वेव्स वो कभी भी कोहेरेंट वेव्स नहीं होंगी. उन वेव्स को हम क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट वेव्स. तो जो मेन कंडीशन है कोहेरेंट वेव्स की वो कब होगी, अगर हमारे पास कोई भी दो वेव्स हैं या 3 वेव्स हैं या 4 वेव्स हैं, वो कब आपस में कोहेरेंट होगी, अगर उन चारों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तभी वो वेव्स क्या होंगी, कोहेरेंट वेव्स होंगी. पर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है कि टू वेव्स, अगर हमारे पास टू वेव्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, वो कभी भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं कर सकती, बिकॉज उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा टाइम के साथ. अगर हम इस फिगर में देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है. तो ये इनका फेज डिफरेंस क्या है, इसका फेज डिफरेंस इन दोनों का ये हमेशा अब्रप्टली चेंज हो रही है. इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है, अब्रप्टली चेंज हो रहा है. कभी 0 हो रहा है, कभी पाई हो रहा है, कभी पाई बाय 2 हो रहा है, 3 पाई बाय 2 हो रहा है. तो ये दोनों वेव्स क्या है, इनकोहेरेंट वेव्स हैं. तो अगर हमें कोहेरेंट वेव्स चाहिए तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम. जैसे कि 1 एंड 2 और 3 एंड 4 है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है. तभी जो वेव्स होंगी वो क्या होंगी,
कोहेरेंट वेव्स होगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी वो वेव्स क्या होंगी, अपना जो फेज डिफरेंस का चेंज है वो कांस्टेंट मेंटेन कर पाएंगी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास आती है वो क्या आता है, पॉइंट आता है कि टू वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैन नेवर मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिकॉज द फेज डिफरेंस जो होगा वो कोज ऑन फ्लक्चुएटिंग, चेंज होता रहेगा बार बार। तो इस वजह से जो दो वेव्स हैं वो अपना कोहेरेंट वेव्स नहीं होंगी, वो हमेशा क्या होंगी, इनकोहेरेंट वेव्स होंगी। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, इंटरफ्रेंस पढ़ा। इंटरफ्रेंस क्या होता है, इंटरफ्रेंस बेसिकली जो टू वेव्स हैं, जो टू कोहेरेंट वेव्स हैं, वो जब सुपर इम्पोज करेंगी तो हमें क्या मिलता है, एक इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली जो इंटरफ्रेंस है वो क्या है, इफेक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ कोहेरेंट वेव्स। और कोहेरेंट वेव्स कौन सी होती हैं, जिनका जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। दैट इज डी फाई बाई डी टी, वो क्या होना चाहिए, हमेशा ज़ीरो। दैट इज फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, वो टाइम के साथ क्या होना चाहिए, हमेशा ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी ज़ीरो। तब वो वेव्स क्या होंगी, कोहेरेंट वेव्स। और वो कोहेरेंट वेव्स जब आपस में सुपरपोज या कंबाइन करेंगे या ऐड करेंगे, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में करें, वेक्टरली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास स्क्रीन पे मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक तरह का इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें मिलेगा। कैसा इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो कौन से प्रिंसिपल से गवर्न होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपने ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, इसमें एक दोनों वेव आपस में क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास जो फाइनल होगा वो क्या मिलेगा, हमें एक रिजल्टेंट वेव होगी। तो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो combined effect at each point of region of superposition is obtained by adding algebraically the amplitudes of the individual waves। तो जो एट ईच पॉइंट ऑफ, जो हमारे पास सुपरपोजिशन के बाद जो भी हमें मिलेगा वो हमें कैसे मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे, एल्जेब्रिकली हम हर एक एम्पलीट्यूड, जो भी इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड होगा उसको ऐड कर लेंगे, तो हमें एम्पलीट्यूड किसका मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा। हमने इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि जो हमारे पास दो वेव्स हैं वो सेम एम्पलीट्यूड के, उनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे कि हमें रिजल्टेंट वेव किस टाइप की मिलेगी। अब जो है हमारे पास दो वेव्स हैं, हमारे पास दो वेव्स हैं, वो किस टाइप से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकती हैं, वो दो टाइप से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक क्या कर सकती है, अगर हमारे पास ये वेव है, ये क्या होता है, इसका क्रेस्ट है, ये क्या इसका ट्रफ है। एक तो क्या हो सकता है, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ क्या करे, सुपरपोज करे, और फर्स्ट वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ सुपरपोज करे। तो हमें क्या मिलेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ सुपरपोज कर रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ सुपरपोज कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेव मिलेगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर वेव्स क्या हो आपस में इन फेज हो, मतलब उनका क्या हो, फेज क्या हो, दोनों का सेम हो। इसका मतलब क्या होता है, इन फेज एट सर्टेन पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेगी, टू वेव्स में भी इन फेज। इन फेज का मतलब होता है जब हमारे पास फेज डिफरेंस वो ज़ीरो हो या टू पाई हो। जैसे कि फेज, ये दोनों वेव्स हैं वो आपस में क्या इन फेज है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, ज़ीरो है या फिर टू पाई है। जैसे ये पॉइंट, अगर हम ये पॉइंट देखें तो इसका भी फेज क्या है, पाई बाय टू है, इसका भी फेज क्या है, पाई बाय टू है। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। तो टू वेव्स क्या हो सकती है, इन फेज हो सकती है। इन फेज मतलब दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, ज़ीरो या टू पाई। तो उनका क्या होता है, जब इन फेज होती है उसमें क्या होता है, जो क्रेस्ट होगा वो क्रेस्ट के साथ सुपरपोज करेगा, ट्रफ है वो ट्रफ के साथ सुपरपोज करेगा। तो हमें रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगी, इस टाइप की मिलेगी। उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है मैथमेटिकली। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, अगर हम दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट वेव्स थे उनके एम्पलीट्यूड को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दैट इज ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a।
तो और इंटेंसिटी जो होती है रिजल्टेंट वेव की वो क्या होती है, इंटेंसिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू ए आर का स्क्वायर। तो ए आर हमारे पास क्या है 2a, तो 2 स्क्वायर ए स्क्वायर 2 स्क्वायर आई। तो जो इंटेंसिटी हमारे पास रिजल्टेंट वेव की होगी वो क्या होगी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी देन द सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, अगर जो वेव्स हैं वो सुपरपोज कर रही है इन फेज में। और जो इंटरफ्रेंस हमारे पास प्रोड्यूस्ड एट दीज पॉइंट्स होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। मतलब जो अब जब दो पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जो वेव है वो इन फेज है वहाँ पे वेव सुपरपोज करे, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ सुपरपोज करे, उन पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा। और वहाँ पे हमें कैसी लाइट मिलेगी, स्टेशनरी ब्राइट बैंड ऑफ लाइट। मतलब हमें एक जो लाइट मिलेगी बहुत अच्छे से ब्राइट कलर की एक लाइट मिलेगी, जहाँ पे जो दो वेव्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हमें ब्राइट बैंड ऑफ लाइट मिलेगा, जहाँ पे दो वेव्स हैं वो ऐड कर रही हैं कंस्ट्रक्टिवली, मतलब इन फेज में वो क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही हैं। उन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो या तो 0 है या 2 पाई है। तो उन पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और वहाँ पे उन पॉइंट्स पे जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा वहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, एक स्टेशनरी ब्राइट बैंड ऑफ लाइट हम इज ऑब्जर्व एट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। फिर हमारे पास कुछ एक ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे जो वेव्स होंगी वो क्या हो सकती हैं, आउट ऑफ फेज हो सकती हैं, मतलब अपोजिट फेज हो सकता है उनका। अपोजिट फेज का मतलब अगर इसका है 0 है, यहाँ पे इसका पाई है 2 वेव्स हैं उनका क्या हो सकता है, मे बी इन अपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज। इसका मतलब होता है जब उन दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरे वेव के ट्रफ के साथ सुपरपोज करेगा, फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकंड वेव के क्रेस्ट के साथ सुपरपोज करेगा। तो क्रेस्ट ट्रफ क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ए आर ए माइनस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसमें क्या होगी, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास 0 है तो इस ऑब्वियस की लेस देन द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल वेव से होगी। तो जो इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस्ड एट दीज पॉइंट्स पे, जो हमें प्रोड्यूस्ड एट दीज पॉइंट्स जहाँ पे जो वेव्स हैं वो सुपरपोज कर रही हैं एंड आर इन आउट ऑफ फेज, उन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो जो जहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव जिन पॉइंट्स के ऊपर लाइट्स जो होंगी वो इंटरफेरेंट करेंगे डिस्ट्रक्टिवली, मतलब उन पॉइंट्स पे जहाँ पे दो वेव्स हैं वो सुपरपोज कर रही हैं और जो वेव्स हैं वो क्या है, इन अपोजिट फेज में है। दैट इज क्रेस्ट ट्रफ के साथ कर रहा है, सुपरपोज कर रहा है, ट्रफ क्रेस्ट के साथ सुपरपोज कर रहा है। वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक डार्क बैंड ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो लाइट है, जो दो वेव्स हैं, जो कोरेंट सोर्सेस से जो हमें दो कोरेंट वेव्स मिल रही हैं वो किसी पॉइंट्स पे तो ऐड होंगी कंस्ट्रक्टिवली और किसी पॉइंट्स पे ऐड होंगे डिस्ट्रक्टिवली। जिन पॉइंट्स पे वो ऐड होंगे जिन पॉइंट्स पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करेंगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कब वहाँ पे हमें नज़र आएगा, ब्राइट बैंड ऑफ लाइट। जिन पॉइंट्स के ऊपर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करेंगी वहाँ पे हमें नज़र आएगा सॉरी डार्क बैंड ऑफ लाइट। तो हमारे पास क्या आता है जो लाइट है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कब करेंगी, जब दो वेव्स होंगी वो क्या होंगी, इन फेज में होंगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कब करेंगी, जब जो वेव्स होंगी वो क्या होंगी, आउट ऑफ फेज होंगी। तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो एनर्जी थी, इंटेंसिटी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी। तो किन्हीं पॉइंट्स पे तो हमें इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मैक्सिमम, और किन्हीं पॉइंट्स पे हमें इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कहाँ मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जहाँ हो रहा है,
और मिनिमम इंटेंसिटी हमें कहाँ मिल रही है, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। तो हम कैसे देख सकते हैं कि एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो अब हमें आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न हम देखते हैं कि कैसा हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न, इस तरह का हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। जैसे हमारे पास ये सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अब इन दो कोहेरेंट सोर्सेज से हमें क्या मिल रही है, लाइट एमिट हो रही है। तो इन दो कोहेरेंट सोर्सेज से जो हमारे पास लाइट एमिट हो रही है, तो लाइट हमारे पास क्या पॉइंट सोर्सेज हैं, तो पॉइंट सोर्सेज हमें क्या देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। तो जब स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे तो किन्हीं पॉइंट्स पे तो हमें क्या हो रही है, जो लाइट है, जो वेव्स हैं, वो क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। मतलब दो वेव्स हैं वो क्या है, इन फेज में है। तो हमें वहाँ क्या मिल रहा है, ब्राइट ब्राइट कलर का बैंड मिल रहा है। जहाँ पे वेव्स जो है वो जहाँ पे वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेज है और जहाँ पे सुपरपोज कर रही हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर जब वो सुपरपोज कर रही हैं और वो आउट ऑफ फेज है, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हमें क्या से मिल रहा है, डार्क बैंड ऑफ लाइट। जैसे हमें कैसे मिल रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट, फिर हमें क्या मिल रहा है, डार्क। तो इनको हम क्या कहते हैं, हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इनको हम कहते हैं इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। ये हो गया हमारे पास ब्राइट फ्रिंज, ये क्या हो गया हमारे पास डार्क फ्रिंज, फिर क्या हो गया ब्राइट फ्रिंज, फिर क्या हो गया हमारे पास डार्क फ्रिंज। जो हमें स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, जो हमें स्क्रीन पे जो हमें बैंड मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस। ये जो फ्रिंजेस है ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। जैसे इसमें हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। अभी हम आगे देखें तो हमें ऐसे फ्रिंजेस भी मिल सकते हैं जो कि क्या है, सर्कुलर है। इसमें क्या है, आपके पास एक डार्क कलर की फ्रिंज, सर्कुलर फ्रिंज आ रही है, फिर ब्राइट कलर की सर्कुलर फ्रिंज आ रही है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो जहाँ पे आपके पास ब्राइट कलर की फ्रिंजेस आ रही है, वहाँ पे हमेशा जो लाइट है वो क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। जो दो वेव्स हैं वो सुपरपोज कर रही है, कब इन सुपरपोज कर रही है, जब वो इन फेज में है। जहाँ पे आपको डार्क बैंड नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस शो हो रहा है। जहाँ पे जो वेव्स हैं वो सुपरपोज कर रही हैं जब वो आउट ऑफ फेज है। जब आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, जब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब है जब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, पाई है, 2 पाई है, या फिर 0 है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमें क्या मिला कि एक तरीके का इसके अंदर क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। कि कहीं पे हमें मैक्सिमम, पहले जो एनर्जी दो वेव्स की जो कांस्टेंट थी इंटेंसिटी आई वो क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। कब रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, जब वो आपस में क्या करा, उन्होंने सुपरपोज करा। किन्हीं पॉइंट पे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, किन्हीं पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रही है। पर टोटल जो हमारे पास इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो क्या होगी, हमेशा कॉन्स्टेंट होगी। तो अब हमारे पास क्या है, when टू और मोर कोहेरेंट वेव्स ऑफ लाइट, मतलब जो कोहेरेंट वेव ऑफ लाइट है वो सुपरपोज करेंगी, तो रिजल्टेंट इफेक्ट हमारे पास क्या आएगा, ब्राइटनेस इन सर्टेन रीजन्स एंड डार्कनेस एट अदर रीजन्स। हमें कहीं पे हमें ब्राइटनेस मिलेगा, कहीं पे हमें डार्कनेस मिलेगा। तो रीजन्स ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस जो हमें मिलेंगी ऑल्टरनेटिवली, वो क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट बैंड्स भी हो सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर फिगर में देखा, और सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं जैसा कि हमने देखा, और एनी अदर कॉम्प्लेक्स शेप या फिर किसी और शेप में भी हो सकती हैं। तो जो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स जो हमें मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर कॉल्ड इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। तो दिस फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, हमें बेसिकली इंटरफ्रेंस में हमारे पास क्या होता है, इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्यों हो रही है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। और वो लाइट वेव्स आ कहाँ से रही है, फ्रॉम टू या फिर टू कोहेरेंट सोर्सेज से, या फिर टू से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं, फ्रॉम टू और मोर कोहेरेंट सोर्सेज, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफ्रेंस। दैट इज फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy due to superposition of light waves from two or more coherent waves is known as interference। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इंटरफ्रेंस होता क्या है। इंटरफ्रेंस हमें कब मिलता है, जब
दो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेज से जो हमें दो वेव्स मिल रही हैं जो कि क्या है कोहेरेंट है, जिनका फेज डिफरेंस क्या है हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, मतलब जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या नहीं होगा चेंज नहीं होगा। जब वो आपस में सुपरपोज करेगी तो हमें क्या मिलेगा, एक तरीके का पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। कहीं पे हमें ब्राइट पैड मिलेगा, कहीं पे हमें डार्क पैड मिलेगा, कहीं पे हमें ब्राइट, कहीं पे डार्क। तो जब ब्राइट पैड हमें कब मिलेगा, जब हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगा, जब जो लाइट है, जो दो सोर्सेज से हमारे पास जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो सुपरपोज करेंगी आपस में, जब वो इन फेज होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या मिलेगा, ब्राइट पैड मिलेगा। और उस इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब लाइट उन पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर सुपरपोज करेगी जहाँ पे जो लाइट जो हमें जो हमें वेव्स मिल रही हैं सोर्सेज से वो आउट ऑफ फेज हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हमें डार्क बैंड मिलेगा। और हमें क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जो इंटरफेरेंस है उसमें क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। और जो इंटरफेरेंस है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे ऊपर वर्क करता है, सुपर प्रिंसिपल ऑफ किस इंटरफेरेंस किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस बनाने के लिए हमें किस वेव्स की ज़रूरत पड़ती है, कोहेरेंट वेव होनी चाहिए। और जब कोहेरेंट वेव आपस में सुपरपोज होंगी तब हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ नहीं होता, इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसा है, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। वो फ्रिंजेस या तो सर्कुलर हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट बैंड भी हो सकते हैं। तो हम इन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस का हम क्या देखेंगे, मैथमेटिकली या फिर एनालिटिकली हम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।